I am Kunal Maurya and I welcome you all in my YouTube channel Youth Glimpse. So friends, first of all, I request you all to subscribe my channel and like my videos. Friends, so if you haven't subscribed my YouTube channel till now, so go to my YouTube channel and subscribe it and support us, because your support is very important for us. It's our inspiration. So friends, today I am before you with a very interesting topic of English grammar, that is conditional sentence. So friends, don't forget to like my videos, subscribe my channel, and believe me, I will always make nice videos on very important topics. So friends, let's come and see what. So friends, before starting conditional sentence, one very important thing we have to learn is we have to know is clause. So friends, a very good question arises from this topic. What is clause? If you don't know about clause, then maybe you face many difficulties in solving conditional sentences. So first of all, we go through the clause. Friends, clause are of two types. First is main clause and the second one is subordinate clause. The main clause is also known as principal clause, okay, and the subordinate clause is also known as if clause because it starts from if, okay. So now see that the main clause is independent clause. It means it is independent to give its own meaning. If we separately see the sentence of main clause, then it will always give its own meaning because it does not depend on other part of sentence to complete its sense. It's a totally independent. So that's why main clause is independent clause. It gives its own meaning without the help of any other part of sentence. And talking about subordinate clause, it is dependent clause. It depends on main clause to complete its sense. If we separately take subordinate clause, then its meaning will not be clear, not be completed. Okay, that's why it is dependent clause. It depends on main clause to complete its sense, and it is also known as if clause because it starts from if. For example, there's a sentence: if you wanted to get good marks, follow my advice. In this sentence, the if clause or subordinate clause start from here. If to marks. If you wanted to get marks, it is subordinate clause or if clause. And follow my advice is main clause. So if you want to check, then separate these, separate both clauses. So first we take main clause. Follow my advice. This is independent and is able to give its own meaning. मतलब कि मेरी सलाह मानो. That's it. But this part of sentence, subordinate clause, it's dependent on this main clause. So it does not give its whole meaning. If you wanted to get good marks, what? It seems to be incomplete sentence. अगर तुम अच्छे मार्क्स पाना चाहते हो, अगर आप ऐसे कहीं बोल दीजिए तो कोई भी जो आपका लिसनर होगा समझ नहीं पाएगा कि क्या आगे का कुछ होना चाहिए था, तब वो सेंटेंस कंप्लीट होता. तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. सो फ्रेंड्स, इतना जानना जरूरी था क्लॉज के बारे में बिफोर स्टार्टिंग कंडीशनल सेंटेंस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट कंडीशनल सेंटेंस. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. अगर हम कंडीशनल सेंटेंस में स्ट्रक्चर फर्स्ट की बात करना शुरू करें तो हम देखें स्ट्रक्चर फर्स्ट में क्या है. तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में होता है कि इफ इन कंडीशनल सेंटेंसेस both clauses show the promise in future, then subordinate clause is in present indefinite and the principal clause is in future indefinite tense. Means मतलब कि अगर जैसे कि क्लॉज हमने बता दिया इसके पहले कि अगर किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में दोनों क्लॉज, बोथ क्लॉजेस, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, अगर बोथ जो दोनों क्लॉज हैं वो फ्यूचर की प्रॉमिस को शो करते हैं कि फ्यूचर में कोई कंडीशन है उसको शो कर रहे हैं कि मतलब कि अगर ऐसा है तो वहां पे हम स्ट्रक्चर फर्स्ट की बात करेंगे. उस समय फिर हम क्या करेंगे ऐसे सेंटेंस में, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा और जो हमारा प्रिंसिपल या मेन क्लॉज होगा वो सिंपली फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा. और ऐसे इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं. देखिए आप,
अब जैसे कि ले लीजिए फर्स्ट एग्जांपल, इफ इट रेन्स द फार्मर विल पे दियर डेब्ट। मतलब इसमें देखिए फ्यूचर की कंडीशन लागू हो रही है। इसमें कह रहे हैं अगर बारिश हुई तो जो किसान है वो अपना कर्ज पे कर पाएंगे। समझ रहे हैं? मतलब कि दोनों कंडीशन जो है फ्यूचर की है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो ये यहाँ की कंडीशन है। तो इसमें आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फर्स्ट हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो जो है किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? और जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो ऐसे ही सेंटेंस होते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट के लिए। इसी तरह दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में जैसे ले लीजिए, इफ दैट क्रिमिनल डज नॉट कन्फेस हिज क्राइम द पुलिसमैन विल बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक एंड ब्लू। दिस इज अ फ्रेज एंड इट्स मीनिंग इज कि मतलब कि बहुत बुरी तरीके से, ओके, मतलब बहुत ही र्यूड होके पीटेगा उसे, बहुत ही बुरी तरीके से पीटेगा। इसका मतलब तो जैसे इफ दैट क्रिमिनल डज नॉट कन्फेस हिज क्राइम, ये तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब आप इसको देख लीजिए, इसकी जो है इसका जो है कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। तो इफ आई हैड, कहाँ गया, इफ दैट क्रिमिनल डज नॉट कन्फेस हिज क्राइम, ये हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये इफ से स्टार्ट है और इसका जो है मीनिंग नहीं निकल रहा है पूरा। दूसरा पार्ट है यहाँ से द पुलिसमैन विल बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, ये यहाँ से लेके द से ब्लू तक जो हमारा प्रिंसिपल, मतलब कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इसमें देखिए ऐसा कर रहा है कि अगर वो क्रिमिनल अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा तो क्या होगा, फ्यूचर को बता रहा है। देखिए अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, द पुलिसमैन विल बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। सीधी सी बात है, जो फिर सेंटेंस में कह रहा है कि जो पुलिसमैन होगा वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटेगा। तो देख लीजिए दोनों कंडीशन फ्यूचर की है। तो जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, इफ दैट क्रिमिनल डजंट कन्फेस हिज क्राइम, ये जो है हमारा किसमें होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, डजंट, okay, it is in present indefinite, and the other principal clause is in future indefinite. Here will is used, okay, you can check. So this is the rule for structure first. I hope you understand, and now we should move on structure 2. What is the condition for structure 2? Structure 2 states that if in conditional sentence both clauses show the case of past tense, then the subordinate clause is in form, इस फॉर्म में had plus verb in third form, and the principal clause is in form would have plus verb in third form. मतलब कुछ नहीं, मतलब कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है और उसमें जो दोनों क्लॉज हैं, मेन क्लॉज एज वेल एज हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो पास्ट की कंडीशन को शो कर रहा है, पास्ट का कुछ बताया जा रहा है उसमें, दोनों क्लॉज में। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के फॉर्म में हम इसे रखेंगे। एंड द प्रिंसिपल क्लॉज किस फॉर्म में होगा, वो होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट विल बी मोर क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल, सो लेट्स सी। अब देख लीजिए, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो देखिए इसमें इफ से लेके टोल्ड मी तक, अगर तुमने मुझे बताया होता, मतलब होता, पास्ट का ये भी शो कर रहा है, पास्ट दिस इज आल्सो इन पास्ट, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। मतलब अगर तुमने मुझे बताया होता मैं तुम्हारी मदद कर दिया होता, मतलब कि ये इसका सेंस निकल रहा है। तो मतलब कि दोनों पास्ट की कंडीशन हो रही है, डेट्स इट। सो अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 2 जो हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वो किस फॉर्म में होना चाहिए था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इफ यू हैड और टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड है ना, यहाँ पे वर्ब वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या है, हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। अब लेकिन और देखिए जो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है ये किस फॉर्म में है,
यहाँ से हम देखिए ना, था ना, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो दिस इज हियर वुड हैव हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। मतलब कि अगर तो पास्ट की कंडीशन शो हो रही है दोनों क्लॉजेस में, तो पास्ट कंडीशन शो हो रही है, तो जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो इस फॉर्म में होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के फॉर्म में होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं स्ट्रक्चर सेकंड का। इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विथ यू। It is very clear that the both clauses, if clause means subordinate clause, या if से लेके वर तक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और I से लेके U तक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये दोनों देखिए पास्ट की कंडीशन शो कर रही है। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि तुम इतने खराब ड्राइवर हो तो मैं तुम्हारे साथ ना आता। सही बात। तो वही यहाँ पे दिख रहा। यहाँ पे दोनों ही क्लॉज जो है पास्ट में है, तो इसलिए जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रियलाइज का थर्ड फॉर्म रियलाइज्ड के फॉर्म में है, और आई वुड नॉट मतलब कि हैव कम विथ यू प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज किस फॉर्म में है, वुड हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। ओके, वुड हैव थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम केम कम। ओके, सो स्ट्रक्चर 2 is clear. Now we move to structure 3. structure 3 में क्या है, structure 3 का है क्या है, if in conditional sentence the both clauses represent bare imagination, this very word bare imagination, then the subordinate clause is in past indefinite tense and the principal clause is in फॉर्म वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब व्हाट इज बेयर इमेजिनेशन, मतलब कि जो चीज पॉसिबल नहीं है, हमारी इमेजिनेशन। ओके, ओनली इमेजिनेशन जो हम करते हैं उस ऐसी कंडीशन कहते हैं बेयर इमेजिनेशन। ओके, तो अगर ऐसा है कि जो दोनों क्लॉज है में हमारा प्रिंसिपल क्लॉज एज वेल एज सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों जो है बेयर इमेजिनेशन शो करते हैं, मतलब कल्पना हमारी शो करते हैं, जो हम सोचते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रखेंगे। ओके, और जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो किस फॉर्म में रखेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब कि अगर बेयर इमेजिनेशन शो कर रहा है दोनों क्लॉज, तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा, और जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो किस फॉर्म में होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। सो कम एंड सी इट विथ एन एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर थर्ड, इफ आई वर ही आई वुडंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। अब पहले तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन प्रिंसिपल क्लॉज देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इफ आई वर ही, ये पूरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और आई वुड नॉट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये दोनों क्लॉज देखिए बेयर इमेजिनेशन पे बेस्ड है। मतलब क्या कि अगर मैं वो होता तो मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करता। व्हाट इज दिस, कोई एक इंसान दूसरा इंसान कैसे हो सकता है भाई, थिंक इट। इफ आई वर ही, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी जैसे मैं, तो इफ आई वर ही आई वुडंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, मतलब कि दोनों देखिए यहाँ बेयर इमेजिनेशन है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में, यहाँ देखिए वर यूज है ना, पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे, और जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है उसे हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट हिज वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म में लिखेंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर 3। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, इन द सेम वे, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड वर्क वंडर्स। मतलब कि पॉसिबल नहीं, हमें इमेजिनेशन यहाँ करनी है। तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं बहुत ही अच्छे काम करता। तो होता तो ना, अभी मतलब किसी इमेजिनेशन है ये। तो ये जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इफ से लेके
इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमारा जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, यहाँ वर यूज है देखिए। और जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो किस फॉर्म में है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड वर्क, वर्क इज वर्क की फर्स्ट फॉर्म, वुड वर्क वंडर। तो ये हो गया। तो आई होप आप लोगों को तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी एट लास्ट आई वांट टू रिकैप सो दैट you all understand it very better, I mean better. So talking about structure first, it's recap. तो structure first, if both clauses represent the future condition, it means future promise, कि तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, और हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो हमारे फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। ओके, बस दिस यही बस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं, इसी पे बेस होते हैं। स्ट्रक्चर सेकंड क्या था कि बोथ क्लॉसेज जो है पास्ट कंडीशन शो कर रहे थे। हाँ, बोथ क्लॉसेज पास्ट कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या था कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज था वो किस फॉर्म में था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में था, और जो प्रिंसिपल क्लॉज था वो हमारा किस फॉर्म में था, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में था। तो ये था फॉर्मेट। आई होप आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको ज़्यादा सही रहेगा, यही मेन है इम्पोर्टेंट। और स्ट्रक्चर थर्ड में क्या था, इफ बोथ क्लॉसेस सो बेयर इमेजिनेशन द थिंग विच आर नॉट पॉसिबल देन द फॉर्मेट विल बी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो पास्ट इंडिफिनिट में होगा है, और जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो इस फॉर्म में होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। ओके, सो दैट्स इन दिस इज ऑल ओवर फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप you all understand it, and please subscribe our channel and like our videos and support us. We are very eager for your support. Your support is must for us. So at last I want to thank you all to join with me and bear me throughout this whole video. At last I want to again thank you. Okay, thanks.